بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے خطر عرش محشر سے گزر جائے گا، بے خطر عرش محشر سے گزر جائے گا جس نے سرکار کی محفل کو سجا رکھا ہے. وہ تو آئیں گے، ابھی آئیں گے، آتے ہوں گے. وہ تو آئیں گے، ابھی آئیں گے، آتے ہوں گے. یہ سوچ کر ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے. سبحان اللہ سبحان تعریف اللہ. جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی، تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی. عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی. میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ. عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی. آج کی مبارک ساعت، یہ مبارک دن، جس گھڑی کا ہمیں کافی دنوں سے انتظار تھا، تقریباً 6 مہینے قبل مرشد کامل کی یہاں پر حاضری ہوئی تھی. ماحول کے مد نظر ان کا آنا یہاں نہیں ہوا، لیکن ان کی دعاؤں کا یہ نتیجہ ہے کہ اس جگہ پر آج بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں ہے. یہ بس مرشد کامل کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. پیر طریقت، رہبر شریعت، فیضان معرفت، آل نبی، اولاد علی، صوفی ملت حضرت علامہ الشاہ صوفی سید فخر الدین علی شاہ علیہ رحمہ، جنہوں نے دین کی خدمت کے لیے اپنے گھر بار کو خدا کے حوالے کیا، خود کو مصطفیٰ کے حوالے کیا اور ہماری اصلاح کے لیے یہاں پر جلوہ بار ہوئے. اللہ رب العزت ان کی پل پل حاضری کو قبول فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی تمام خدمات کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. عزت مآب عالی جناب خادم قوم و ملت حضرت علامہ نور الحسین حضرت ریاض احمد صاحب قبلہ، یہ ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آپ لوگوں کو بار بار بلاتے رہے. اللہ رب العزت نے پیر و مرشد کی نظر رحمت فرمائی کہ ان کی خدمات آج قبول ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ سب ان کے کوششوں کا نتیجہ ہے. کسی کو بلانا اور دعا کرنا، کسی کو بلانا ذکر کے لیے اور دعا کرنا، یہ دونوں ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جیسے کوئی بند دروازہ ہے، کوئی بند دروازہ ہے، بس اسے کھٹکھٹاتے رہنا چاہیے. دعاؤں میں کثرت کرنی چاہیے، لوگوں کو بلانا چاہیے. جس دن اللہ کا کرم ہو جائے گا، مرشد کامل کی نظر عنایت ہو جائے گی، تو سب یہاں کھینچے چلے آئیں گے انشاءاللہ. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس خانقاہ میں اتنی برکتیں عطا فرمائے کہ جو بھی یہاں آئے سکون سے بیٹھ کر جائے. خطبہ مسنونہ کے بعد کلام پاک کی جس آیت کریمہ کا میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کلام پاک ارشاد فرما رہا ہے اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کو چھوڑ کر جھوٹوں کے ساتھ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ آج بہت سے اپوزٹ کے سوالات بہت گھومتے ہیں
फ़िरका परस्त जमातें भी उल्टे सवाल करते हैं, इससे होता क्या है? इसका भी जवाब कलाम पाक में है कि सच्चों को छोड़कर झूठों के साथ जाने से क्या होता है। पहले ही पारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहर लगा दी उनके दिलों पर, उनके कानों पर, उनकी समात पर, उनकी बसारत पर, तो ना उनका दिल ज़िक्र की तरफ दौड़ेगा, ना अज़ानें उन्हें सुनाई देंगी, ना ही किसी अल्लाह वाले की सोहबत में बैठकर अल्लाह वाले को देखना उन्हें नसीब होगा। ऐसे लोगों के लिए कलाम पाक की दूसरी आयत, जिन्हें बुलाने पर भी आज नहीं आए, जो बिल्कुल नाकारे हैं, उन्हें काम भी नहीं है, उन्हें फुर्सत भी है, इसके बावजूद भी अपने अना के बिना पर नहीं आए, उनके लिए सूरह यासीन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। ये अल्लाह का कलाम सूरह यासीन में इरशाद फरमा रहा है कि हमने उनके आगे एक दीवार बांध दी और पीछे एक दीवार बांध दी और उन्हें ऊपर से ढाँप दिया, तो अब उन्हें कुछ सूझता नहीं। चाहे आप कितनी भी अज़ानें उनके सामने सुनाएं, कितनी भी तकरीरें उनके सामने सुनाएं, कितना ही उन्हें ज़िक्र के लिए बुलाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले पारे में मोहर लगा दी, 22 पारे में उन्हें कैद कर दिया, तब उन्हें हिदायत नहीं होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा इकराम ने जब ज़िक्र के मामले आए, नमाज़ों के मामले आए, इबादत में सुस्ती आई, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से यूँ ऐलान फरमाता है, ऐ महबूब तुम फरमा दो अपने दिलों को मोमिन 3 जगहों पर टटोला करें। अपने दिलों को मोमिन 3 जगहों पर टटोला करें कि उनके दिल जिंदा हैं या उनके दिल मुर्दा हो चुके हैं। इसे आजमाने के लिए, इसे चेक करने के लिए 3 जगहों का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद बयान फरमाया। एक, जहाँ पर कुरान की तालीम हो, कुरान का ज़िक्र हो, तो देखो वहाँ पर तुम्हारा दिल लगता है या नहीं। दूसरी, ज़िक्र की महफिल, जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र हो, उसके महबूब का ज़िक्र हो, वहाँ तुम्हारा दिल लगता है या नहीं। उसके बाद तन्हाई में, कि जब तुम्हें फुर्सत मिले, कोई तुम्हारे पास नहीं है, तुम अकेले बैठे हो, तुम्हारा ज़िक्र, अल्लाह ने जो तुम्हें दिल दिया है, वो दिल तुम्हारा अल्लाह के ज़िक्र में लग रहा है या नहीं। अगर वहाँ भी तुम्हें दुनिया के ख्यालात आने लगे तो समझ लो कि तुम्हारा दिल मुर्दा हो चुका है। पहले पारे में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है कि हमने उनके दिलों पर मोहर लगा दी, वो मोहर तुम्हारे दिलों पर लग गई है, इसलिए अब तुम्हें ना ज़िक्र का ख्याल आएगा, ना तुम्हें फुर्सत होगी। और जो ज़िक्र से गफलत इख्तियार करता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो दुनिया में अल्लाह के ज़िक्र से गफलत इख्तियार करता है, तो उसे एक तरह की से उसके कामों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरह से बढ़ा देता है कि उसे ज़िक्र को आने की तौफीक ही नहीं होती, फुर्सत ही नहीं होती, इतना वो दुनियावी कामों में उलझा रहता है। आप कोशिश करें, आप आए, आपका खैर मकदम है, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। मुर्शिद कामिल की ज़ियारत भी आपने की, आपको इस महफिल में बैठना भी नसीब हुआ। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, पीर की सोहबत में, अल्लाह वाले की सोहबत में एक लम्हा बैठना 100 साल की इबादत का सवाब। एक लम्हा अल्लाह वाले की सोहबत में बैठना 100 साल की इबादत का सवाब। ये सिर्फ बैठने की बरकतें हैं। जब हम उनसे मुसाफा करेंगे, जब उनके कदम चूमेंगे, जब उनके नज़दीक बैठेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो मुक़द्दस वली होते हैं, हर लम्हा उन पर अनवार व तजल्लियात की बरसात होती रहती है। वो तो गुनाहों से पाक होते हैं, लेकिन जो गुनाहगार उनकी बारगाह में जाता है तो वो फैज़याब हो जाता है। एक जो नमाजी नहीं था, ईमानदार नहीं था, चोर था, डकैत था, लफूर था, ऐसा शख्स किसी एक बुज़ुर्ग की बारगाह में वो लगातार हाज़िरी देता गया,
इसके गुनाहों की आदत छूटती रही, वो नेकी की तरफ चलने लगा। ये मामला होता है। जो कलाम पाक की मैंने आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें मोमिनों से खिताब किया है कि ऐ ईमान वालों, बेईमानों से नहीं, मुनाफिकों से नहीं, ईमान वालों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये सच्चों की जमात है, ये सच्चों के सरपरस्त हैं, जिनकी दुआओं का नतीजा है कि मुझ जैसा नाचीज़ इनकी बातें सुन सुन कर कुछ आपके सामने बोलने के लायक हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इनकी बारगाह में बार बार जाना नसीब फरमाए, बार बार इनके साथ बैठना नसीब फरमाए, इनके दामन के से वाबस्ता रहकर दीन का काम करने की तौफीक अता फरमाए। हर जुम्मा ये महफिल ठीक 9 बजे शुरू हो जाती है, इंशाअल्लाह 10:30 बजे तक इस महफिल का इख्तिताम होता है। आप कोशिश करें कि हर जुम्मा आएँ। ये ना समझें कि यहाँ पर जगह नहीं होती, मैं कैसे बैठूँगा, मुझे वहाँ बैठना पड़ता है। जितना आप यहाँ दुश्वारियाँ इख्तियार करेंगे, इंशाअल्लाह सवाब में उतनी ज़्यादती होगी। क्योंकि जो मुसीबत से काम होता है, सब्र का फल मीठा होता है। जितनी देर बैठेंगे आप एक सब्र कर रहे हैं। कलाम पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहीं ये नहीं फरमाया कि मैं नमाजी के साथ हूँ, मैं हाजी के साथ हूँ, मैं फलां के साथ हूँ, मैं मुत्तकी परहेज़गार के साथ हूँ। कहीं साथ रहने का ऐलान कर रहा है तो वो सब्र वाले हैं। आपने गर्मी का यहाँ पर देख रहे हैं और एकदम लग के बैठने से जो तकलीफ़ झेल रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला इसका जज़ा बहुत अल्लाह की बारगाह में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मिल बैठने को काबिल कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह थोड़ी देर ज़िक्र होगा, उसके बाद सलात व सलाम।